Okay, good morning children. Okay, so today we gonna to study about diary entry. I know that you must have already studied about diary entry, but I am going to give you a little glimpse of diary entry. Okay, so in this diary entry we are going to see how to write it. First we should write the date when you are going to write the diary. Next you will write the day and the time when you are writing the diary. Like you are writing the diary 17:50. I have written the time in 24th Feb format. It means 24-hour format. Okay. You can write like 5:50 p.m. Okay. It's upon you. Okay. Next, you will write dear diary. Okay, then we start the writing. Okay, so like this you have to write, you have to enter the things, and then the topic, what the topic is given. The topic is, let's solve the first one. The first one is given, imagine you are a Superman and you possess the great and special powers. Use the clue given below and write a diary entry about your experience, observation, thoughts and feelings. You may start by writing. Class, this question has been solved by the ma'am, Manorama ma'am. बच्चों बताओ, ये वाला सॉल्व मैंने करा दिया था पेज नंबर 205 पे, जो पहला आप लोगों का ए वाला दिया हुआ है. यस मैम. अच्छा, यस मैम, ठीक दिया हुआ है. नहीं, इसको मैम ने ये दिया तो हुआ, ये तो क्लूज दिए हुए हैं. इसको फुली कंप्लीट करके मैम ने लिखवा दिया था क्या? मैम ने बुक्स में दिया था. अच्छा, ठीक है, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको बाहर से दिया था, मतलब मैम ने ये वाला नहीं करवाया है ना. कोई नहीं, आपने करना है तो करना है, इसलिए आप लोगों को मैं ऑप्शंस बता दे रही हूँ. बी एंड सी, यू हैव टू सॉल्व बी एंड सी. इन दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आप लोग दोनों को ही प्रिपेयर करना. इन दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, पहला बी वाला है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता दे रही हूँ. इमेजिन यू आर एन एस्ट्रोनॉट एंड यू आर ट्रैवलिंग इन अ स्पेसशिप. Write a diary entry and record all that you see in the space, your experience, thoughts about your family, the view of the earth from space. अब हमें इसके बारे में लिखना है कि डियर डायरी. तो अब इसमें आपको क्या फील कराना है कि मैं जो हूँ वो एस्ट्रोनॉट हूँ. तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप किसके बारे में करोगे? सबसे पहले तो आप अपनी प्लानिंग के बारे में बताओगे, क्योंकि आप क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉट हो. और तो सबसे पहले लिखोगे yesterday night I had a nice dream. मैं ड्रीम लिख रही हूँ, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो. ठीक है, मैं ड्रीम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली लिखना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं ड्रीम लिख रही हूँ. आप लोग का जो मन करे आप लोग वैसा लिख सकते हो. ठीक है, ये कोई कंपल्शन नहीं है. मैं ड्रीम लिख दे रही हूँ. Yesterday I had a nice dream that I was an astronaut. मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल. बेटा, I have shared the screen. This time, are you able? Yes मैम. Beta, there is some little problem of network congestion. You just leave and rejoin, okay? So I was an astronaut and traveling into a spaceship
by Israel. Can you see that again? Yes बेटा. By Israel. Can you show the upper diary entry? Yes beta, you can show. Please send that on my WhatsApp. Okay. I am just giving you a little glimpse. Don't worry. Okay. By Israel to research about मून. क्या है हम लोगों का बच्चों? मून पृथ्वी का क्या है? सैटेलाइट है. Natural satellite. Yes, yes. Other satellites on Earth. The earth was seeming like a blue ball. नमस्ते दीदी. A blue ball. मैम ऊपर वाला दिखाना. Rotating on its axis. I desired to touch the ball, but as I reach nearer the earth, it became bigger and horrible. ओके, तो इस तरीके से आप अपनी फैंटेसीज को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, मतलब अपनी कल्पनाओं को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो. लाइक वट एवर यू थॉट अबाउट द अर्थ, कि आपको अर्थ कैसी लग रही थी आसमान से, ये सारी चीज़ें आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो. ओके, सो क्लास. यस बेटा. Ma'am, we can write whatever we want in our own words. Yes, yes, that's why the diary entry is given. Diary entry, it means your own language, first thing. Okay, because it is English, that's why I am making you write the own language that is in English. अगर हिंदी में होता तो आप हिंदी में लिखते, संस्कृत में होता संस्कृत में लिखते, मतलब जो लैंग्वेज आपको आती है डायरी एंट्री हम लोग उसी लैंग्वेज से करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश है, इसलिए हम इसे इंग्लिश में लिख रहे हैं. ठीक है, तो आपको अपनी लैंग्वेज में इसे लिखना है जैसा आप महसूस करते हैं. बट देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए. अगर आपने घटना पुरानी बताई है तो पूरा सेंटेंस आपका किसमें होना चाहिए? पास्ट में होना चाहिए. ठीक है, ज्यादातर इसमें जो भी घटनाएं होती है वो पास्ट में ही होती हैं. तो जैसे मैंने लिखा ना आई हैड, आपने देखा. इसके बाद देखो इसमें मैंने जितनी भी जगह यूज किया है, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने रीच्ड,
ठीक है। अब जैसे आप लिखा डिजायर्ड, इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है मैंने अर्थ वॉज। मुझे पता है कि अर्थ हमेशा रोटेट कर रही है, लेकिन मैंने वहां पर जो देखा उस हिसाब से मैंने वॉज लगा दिया, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड, ये सारी चीजें बताती हैं कि हम पास्ट में चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का बखूबी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप एक अच्छी डायरी एंट्री लिख सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, लेट मी गिव यू वन एक्सरसाइज of grammar. Okay, are you ready for that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, those who are not able to see, kindly leave and rejoin. So in this question you can see that complete the following sentences using appropriate verb forms. Listen to me, verb forms it is saying. Verb forms are first form, third form, second form. First form is like go, then second form went, and next one that is gone. It means simple, simple present, next past tense, and next is past participle. So these are the three main forms of the verbs. Okay. So in the first sentence it is given the teacher dashed the lesson yesterday. So it is written yesterday. So what it will be? Teach, taught or has taught? Taught. Taught. चलो, लेकिन ये मुझे बताओ इसमें has taught क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ये पूछा कि इसमें has taught क्यों नहीं हो सकता? has taught, हाँ? मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, जब मैं अब देखो इस सेंटेंस को थोड़ा मैं सॉल्व करके बताती हूँ आप लोगों को, so you would be able to understand. देखो इस सेंटेंस में क्या लिखा है? The teacher dash the lesson yesterday. The lesson yesterday. अब इसमें मैं तुम लोगों को बता दूं, इसमें थोड़ा सा एक क्या है कि आपको पता करना है कि हम taught लगाएं या फिर has taught लगाएं। देखो taught का मतलब, जब हम taught लगाएंगे इसका मतलब कि हम क्या कह रहे हैं, इसको हम सिंपल पास्ट बना रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ये लगा रहे हैं इसका मतलब हम क्या बना रहे हैं, इसे प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं। तो हमें कौन सा बनाना है इसको? ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा इस वर्ड से। ये वर्ड जो लिखा है ना यस्टरडे, अगर यहाँ पर टाइम और डेट या फिर जो प्लेस फिक्स है, टाइम फिक्स है, अगर टाइम फिक्स दिया हुआ है और वो समय पुराना है तो वहां पे सिंपल पास्ट लगेगा। अगर यहाँ पर टाइम नहीं दिया होता तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाता। इसको दिमाग में अपने बिठा लो। अगर टाइमिंग दी हुई है तो वो क्या होगी? सिंपल पास्ट। टाइमिंग नहीं दी होगी तो क्या लगाएंगे हम? प्रेजेंट पार्ट परफेक्ट। तो क्या होगा यहाँ पर आंसर? टॉट। क्या होगा आपका? टॉट। कैसे बताया मैंने? फिर से बताओ मुझे, कोई बताएगा मुझे मैंने क्या बताया अभी? ईशा टेल मी, ईशा टेल मी। उत्कर्षी टेल मी। उत्कर्षी टेल। मैम यू हैव टोल्ड दैट कि अगर टाइमिंग दी होती तो फिर सिंपल पास्ट होगा, लेकिन आपकी टाइमिंग नहीं दी है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी से जैसे क्या होता है ना, कई बार आप लोगों को, सभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर सही आंसर है क्या। तो उस आंसर को सही और गलत में इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग दिया होगा तो क्या लगा दोगे? सॉरी, टाइमिंग दी होगी मतलब पुरानी टाइमिंग दी होगी तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट का है, और पास्ट का है तो सिंपल पास्ट का है। तो आंसर क्या होगा हमारा? टॉट। नाउ he dash questions to see if the students have understood the lesson. So what would be the answer?
is asking. अब देखो इसमें क्या लिखा है, पहले इसकी मीनिंग निकालो। नाउ ही डैश क्वेश्चंस आस्क, क्लास साइलेंट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। क्वेश्चंस टू सी इफ द क्वेश्चंस हैव अंडरस्टूड द लेसन। अब वो क्या करेगा, क्वेश्चंस पूछेगा कि बच्चों ने इसे पढ़ लिया है या नहीं, ठीक है। तो अब हमने तो इसका हिंदी में अपने निकाला कि पूछेगा, लेकिन इसमें विल का तो कहीं पर वर्णन नहीं दिया है। तो अब इसका हमें क्या करना है, इफ द क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्या है, बच्चों ने लेसन को पढ़ लिया है, इसका मतलब ये काम हो चुका है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अभी भी क्या है, बना हुआ, ठीक है। नाउ ही क्या करेगा, अब वो पूछेगा। नाउ ही इज आस्किंग, आंसर क्या हुआ आपका, इज आस्किंग। वो हमारा आंसर करेक्ट है, और करेक्ट होने के साथ साथ हमें करेक्ट मिल भी गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, आपको जब आंसर करेक्ट हो जाएगा तो वो करेक्ट लिख कर आ जाएगा। एज ही डैश नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, क्या होगा, टेल मी द आंसर क्लास। Is not satisfied with the he will repeat the इसमें सेकंड वाला होगा, फर्स्ट वाला होगा। अच्छा, सेकंड वाला क्यों नहीं हो सकता, मैम क्योंकि यहाँ पर टुमारो दिखा है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर टुमारो दिया है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, आपका जॉन डैश इन हॉस्पिटल्स फॉर 2 वीक्स। मैंने देखिए आपका सेकंड आंसर लगाया ना, लेकिन वो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें टाइमिंग दी हुई है। अगर यहाँ पर टाइमिंग नहीं दिया होता, जैसे यहाँ पर टुमारो नहीं लिखा होता, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते थे, यहाँ पर वुड लगाते। क्यों नहीं, क्यों लगाते वुड, इसका भी कारण सुन लो। क्या होता है कि जो विल होता है वो आपको परफेक्ट फ्यूचर का ज्ञान कराता है, लेकिन जो वुड है वो आपको एक एस्टिमेट फ्यूचर का ज्ञान कराता है। एस्टिमेट फ्यूचर मतलब कि हाँ ये चीज हो सकती है, लेकिन विल का मतलब परफेक्टली वो होगी ही। जैसे मानो मैं कहूँ कि जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की छुट्टी होगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन पितृ विसर्जन की छुट्टी होगी कि नहीं, ये तो कंफर्म नहीं है। तो जन्माष्टमी वाले में कंफर्मेशन मिल जाता है, पितृ विसर्जन वाले में कंफर्मेशन नहीं मिलता है। उसी तरीके से विल और वुड का भी सेक्शन है। विल का मतलब परफेक्टली होगा, वुड का मतलब परफेक्टली होगा या नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। शायद वो लड़का कल क्वेश्चन पूछे, अगर हिंदी में ऐसा बोले तो इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, वहां पर वुड लगाकर लिख देंगे। आया समझ में, ओके। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट इज जॉन डैश इन हॉस्पिटल्स फॉर वीक। क्या होगा, हैज बीन लाइंग, इज लाइंग और लाइज, Has been lying. वेरी गुड, यस हैज बीन लाइंग, वेरी गुड। कैसे पता चला, यहाँ पर फॉर 2 वीक्स लिखा हुआ है, फॉर और सिंस लगा हो तो समझ जाना किसकी बात हो रही है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। नेक्स्ट, वी डैश हिम यस्टरडे। अब देखो फिर वही प्रश्न आ गया, वर विजिटिंग, विजिटेड और हैव विजिटेड, which would be the answer? Very good. क्यों 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 क्यों, क्योंकि very good, because the timing is given. Very good. He dash completely. So what would be the answer? Recovered, recovered. Yes, very good. It is has recovered. क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है। वेरी गुड, इसका मतलब तुम लोगों को आप वर्ब्स आने लग गए, इसका मतलब। ओके, वेरी गुड। मोस्ट प्रोबेबली ही डैश टू स्कूल नेक्स्ट वीक। मोस्ट प्रोबेबली will come, would come, has come. According to you, I will make. जल्दी बताओ कौन सा लगाऊं, पहला, सेकंड, थर्ड। सेकंड,
क्या हुआ आपका बिल कम होगा। आप पूछोगे मैम ये कैसे हो गया, मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना मोस्ट प्रोबेबली, इसका मतलब है पक्का। इसका क्या मतलब बताया उसने, पक्का। और अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, विल का मतलब होता है पक्का और वुड का मतलब पक्का नहीं होता जो चीज। विल का मतलब पक्का और वुड का मतलब जो पक्का नहीं होता। और यहाँ सेंटेंस में क्या था, मोस्ट प्रोबेबली मतलब पक्का, ही विल कम टू स्कूल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर पक्का उसने पहले ही बता दिया था। अगर यहाँ पर लिखा होता परहैप्स, क्या लिखा होता बच्चों, परहैप्स। अगर यहाँ लिखा होता परहैप्स ही, तब यहाँ पर हम क्या लगा देते, वुड का। क्या लगा देते, वुड का। ओके नेक्स्ट वन क्लास, ये 7th वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको। हाँ नेक्स्ट वाला लगाते हैं, ठीक है। मार्क डैश फॉर जॉब्स एवर सिंस ही पास्ड हिज एग्जामिनेशन इन मार्च। Applied. Which one is the answer? First one, second one, third one. Who will give me the answer? I want to see. Kindly raise your hand. Okay. Poonam, Harshita, Divya, Deepak Patil and Abhinav Jaiswal. Okay. Divya, can you give me the answer? Divya? First one. Okay. Yes, ma'am. Abhinav Jaiswal, what is your answer? Abhinav. Second. Have been a time. Okay. Poonam, what is your answer? Ma'am has been applying. Okay. Utkarshi, what is your answer? Have been applying. Okay. Now let me put has been applying. Applied. Yes, it is correct. अब इसकी जरा मीनिंग निकालो तो समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है देखो, मार्क कहता है, मार्क क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। कब से, जब से, अब देखो फिर सुनो, कब से, जब से उसने एग्जाम मार्च में पास किया है, तब से लेकर अभी तक वो क्या कर रहा है, अप्लाई करते ही जा रहा है। तो हैज बीन अप्लाइंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट मंथ ही डैश फॉर एन इंटरव्यू। First one, second one, third one. Which is the answer? Who will give me the answer? I would like to see. Yes, Divya. Appeared. Okay, सबने अपना अपना आंसर रख लिया अपने पास। अब मैं जा रही हूँ पुट करने, आपने बताया, ठीक है। कर दिया मैंने, हैज अपीयर्ड को क्लिक कर दे रही हूँ। देखो आपका रॉन्ग हो गया आंसर। इसने भी हैज सोचा होगा, उसका आंसर रॉन्ग हो गया। आप पूछो कैसे। इसमें लास्ट मंथ दिया हुआ है। मैंने अभी बताया था कि जब टाइमिंग दी हो तो क्या होता है, अपीयर्ड होगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट, ही डैश फॉर द रिजल्ट। Ma'am is waiting. Very good. Waiting. He is waiting for the result. It was super easy. Okay, next question. I dashed to my friend a fortnight ago, inviting her to spend the holidays with me. Wrote क्यों? Why? Because the time is given. Answer is correct. Next, yesterday I dashed her reply. Yesterday, very good. Received her reply. Okay, so answers are given. You can match your answers. Okay. 10 minutes are left. One more exercise we will solve. Okay. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now in this question you have to state
whether the verbs are transitive or intransitive. Okay, she advised me to consult a doctor. Is it transitive or intransitive? Transitive. Yes, it is transitive. Why it is transitive? Because here the verb has an object me. Because the verb has an object, you can see advised me it is written. Okay. Next, let's invite your cousins as well. It is transitive or intransitive? Yes, because listen to me. Invite your cousins. Who is invited? Your cousins are invited. It means somebody is there to be invited. Okay, so it is transitive. I waited for an hour. It is transitive or intransitive? Yes, it is intransitive because it doesn't have any object. Next, I received your letter in the morning. Yes. I am going to, yes, it is correct. I am going to send her some flowers. Yes. What is sent? Yes. He has changed a lot since he got married. Yes, it is intransitive. Very good. Okay. Suddenly the child woke up. Yes, it is intransitive. The loud noise woke me. Correct. Who has been woke up? Me. I woken up by the voice. Okay. Next, let's discuss your plans. Class silent. Silent everyone. Silent. Class silent. Let's discuss your plans. What is discussed? Your plan is discussed. Okay, that's why here it is transitive. I heard a lovely song in the morning. Transitive. Okay, it is transitive. Okay. Next, can you lend me a few pounds? The wind was blowing fiercely. Okay, so all the questions you have done, that is correct. Okay, so a lot of clappings for you all, that you did very well. Okay, the next question. The book was lying on the table. Book is a common noun. Class silent. I said. I will ask one by one the questions. Okay, the first question is, the book was lying on the table. Book is a common noun, book is a proper noun, and book is a collective noun. Who is going to give me the answer? Rituraj, please give me the answer. Book is a common noun. Book is a common noun. Okay, correct. Next question. Love begets love. Love is a common noun. Love is a collective noun. Love is an abstract noun. Riya Babar, tell me your answer. Love is an abstract noun. Okay, love is an abstract noun. Correct. We cannot live without water. Water is a common noun. Water is a material noun. Water is an abstract noun. Okay. Poonam. Poonam. Yes, ma'am. Give your answer. It is a material noun.
What you said? Water is a? Ma'am, the material noun. Very good. It is material noun. Okay. The jury has given its verdict. Jury is collective noun, common noun, abstract noun. Okay. Abhinav Jaiswal. Ma'am, collective. Yes, it is collective noun. Very good. The Hindus regard Krishna as an incarnation of Lord Vishnu. Hindus is a common noun, it is a proper noun and abstract noun. Ankit Soni. Ankit Soni. Ankit Soni, I said. Ankit Soni. Yes, ma'am. Better give your answer. Arhan Yadav, give your answer. Ma'am, it's a abstract noun. Ma'am, Mary. It regards as the incarnation of Lord Vishnu. What is? Hindus, common, proper or abstract? Ma'am, common. No, ma'am. Wrong. It is proper noun. ये क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो. हिंदूज जो होते हैं वो पूरी एक कम्युनिटी है, ठीक है. पहली चीज तो ये कम्युनिटी है, और इस कम्युनिटी के लिए हमने यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज और ध्यान नहीं दी. यहाँ पर द हिंदूज लिखा हुआ था. केवल हिंदूज भी लिखा होता तो भी एक बार मान लेते कि ये कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं को बताया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा. ठीक है. नेक्स्ट आपका आंसर है alcohol is injurious to health. Health is common noun, abstract noun, proper noun. Mustafizur Rahman. Ma'am, abstract noun. Okay. Health is an abstract noun. Correct. Smoking is a bad habit. Habit is common, proper and abstract. Okay. Riddhi Mishra, tell your answer. Riddhi. Yes, ma'am. Tell your answer. Noun. Which noun? Riddhi, tell beta. Yes, ma'am. Which noun? Which noun? Ma'am, common noun. Achha, common noun. Okay. So, common noun. Wrong. It is an abstract noun. Smoking is an abstract. Sorry, habit is an abstract noun. इसको टेस्ट थोड़ी ना कर सकते हैं habit को. Wild animals live in forest. Animal is a common noun. Animal is a proper noun. Animal is an abstract noun. Okay. Ashish Kumar Yadav. Ashish. Ashish, you are not giving the answer. Harshita will give me the answer. Harshita, Yes, ma'am. What is the answer? Animal is common noun. animal is common noun. The childhood of Peter was full of misery. Soumya Shukla. Ma'am, abstract noun. Abstract noun. Okay. Correct. All the girls. Now 3 questions are left. I am doing them fast. All the girls were singing common, proper, abstract. Which is? Correct. Gold is a precious metal. Gold is abstract noun. Sorry, material noun. Rice is the staple food of South Indian. Rice is? Material noun. The earth moves around the sun. Common noun. Common noun. Okay. Proper noun. Okay. No, it is not proper noun. Listen to me. So यहाँ पर द अर्थ नहीं लिखा था ना बच्चों. जब द अर्थ लिखा होगा तो वो प्रॉपर हो जाएगा, और अगर द अर्थ नहीं लिखा है तो वो प्रॉपर नहीं होगा, कॉमन हो जाएगा. Okay class. So everyone, thank you everyone, and keep learning. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.